آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑا خوبصورت موسم بھی آپ کو مبارک کہتا ہوں۔ سارے موسم خدا کے ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، پتجھڑ ہو، بہار ہو، یہ موسم بدلتے رہیں گے۔ جب تک ہم میں زندگی ہے یہ یاد رکھ لیں، لکھ لیں یہاں، موسم بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، لیکن خداوند یسوع مسیح اپنی محبت میں یکساں ہے۔ ہاللویا! وہ آپ کو پیار کرتا ہے اور ہر موسم میں آپ کو پیار کرتا ہے۔ ہاللویا! اور ہر موسم میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ہر موسم میں آپ کے پاس ہوتا ہے۔ ہاللویا! اور آج بھی وہ ہمارے درمیان موجود ہے، جس سے ہم تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے۔ ہاللویا! آپ بڑے پیارے ہو، بڑے مجھے خوبصورت لگ رہے ہو اور بڑے اچھے آپ کے مسکراتے چہرے مجھے لگ رہے ہیں، اور اگر مجھے لگ رہے ہیں تو آسمانی باپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ وہ بھی آپ کو دیکھ کے جھانک کے ہنس رہا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں آج بینکویٹ ہال میں، شادی ہال میں پھر آئے ہیں اور بوفے لگا ہوا ہے اور آج اچھی اچھی ڈشیں کھائیں گے اور انجوائے کریں گے اور اپنے آسمانی باپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ ہاللویا! آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں گے اور پچھلے اتوار کی عبادات میں ہم سن رہے ہیں He brought me to the banquet hall۔ آج اسی موضوع کو ہم جاری رکھتے ہوئے اس کا جو پارٹ ہے وہ ہے 16واں اس کا حصہ ہوگا، اور بائبل مقدس میں سے ہم وہی آیات پڑھیں گے غزل و غزلات کی جو کتاب مقدس میں سے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن خدا ہمیں ایک نئی برکت دے گا، نئی قوت دے گا، نئی تازگی دے گا، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ہر صبح تازہ ہے اور یہ اس کا زندہ کلام ہے۔ ہاللویا! اور جب بھی ہم سنتے ہیں، جب بھی ہم پڑھتے ہیں، جب بھی ہم سناتے ہیں، یہ تازہ ہے، یہ خدا کا مکاشفہ ہے۔ اس میں ایک نئی قوت، نئی تازگی، اس میں ایک نئی برکت چھپی ہوتی ہے، کیونکہ یہ قوام ناول کی طرح نہیں ایک دفعہ پڑھے تو باقی پھر وہی باتیں ایک ہی طرح کی ہوتے ہیں۔ نو 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 نو، یہ مکاشفہ ہے، جیسے پڑھتے سنتے سناتے جائیں گے آپ کو مکاشفہ ملتا جائے گا۔ ہاللویا! خداوند آج بھی ہمیں ایک نئی برکت دے گا۔ نکالیں غزل و غزلات کی کتاب مقدس، اس کا 2 باب 4 5 دونوں آیات ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، وہ مجھے میں خانہ کے اندر لایا، اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا، کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ ہم سن رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے شاعرانہ انداز میں لکھی گئی ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح کی اور کلیسیا کی ایک دلہا اور دلہن کی علامات پیش کر کے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، تاکہ ہم اچھی طرح جانیں سمجھیں، کیونکہ خدا ہمیشہ علامتی طور پر، تشبیہاً طور پر، استعارات کے طور پر سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، تاکہ جو ہماری زندگی میں چیزیں عام ہیں ان سے ہم سیکھ کر کے یاد رکھ سکیں۔ تو بائبل مقدس میں بینکویٹ ہال میں
खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों को लेके आता है। हम पिछले दिनों से ये सीख रहे हैं कि वो हमारा दुल्हा है, कलीसिया उसकी दुल्हन है। और हमने पोशाक के बारे गौर किया कि एक रीतवेल जो है बड़ी अहमियत रखती है, हाँ, दूल्हा दुल्हन के लिए। और फिर हमने गौर किया रिंग जो है, वेडिंग रिंग जो है, इस पर हमने डिटेल के साथ सीखा। लेकिन एक चीज़ और भी है, वो भी बड़ी अहम है और बाइबल मुकद्दस के वो भी मुताबिक है। और बहनें तो ख़ास ही आज ज़रा अलर्ट हों कि बहनें बताएं, और भी चाहे जितनी मर्जी चीज़ हो, एक अहम चीज़ और होती है। बताएं किन के लिए तालियां बजाऊं? हैं? बुके भी है, यस, वो भी है। और अहम चीज मैं बताता हूं, वो है जूती, शूज। आप हंसेंगे कि हाँ ये भी अहम है, लेकिन आज हम सुनेंगे कि बाइबल मुकद्दस में ये भी अहम है और उतनी ही अहम है, जब मैं हवाला भी बताता हूं पढ़ के, जितनी पोशाक है उतनी ही अहम है जितना क्राउन है, उतनी ही अहम है जितना रिंग है, वेडिंग रिंग है। वेडिंग शूज या जूती हम कहें अपनी जुबान में, वो उतनी ही अहम है। मिसाल के तौर पर हम अगर पढ़ते हैं खरूज की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 11वीं आयत, तो यहाँ पर क्या लिखा है? जब खुदावंद यीशु मसीह ने, जब खुदावंद ने यीशु मसीह के लहू की तशबीहन बरे के लहू से आज़ाद किया, मिस्र से अपने लोगों को, पुराने अहदनामा की कलीसिया को, तो खुदा ने हुक्म दिया इस आयत में मूसा के ज़रिया से। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि तुम क्या करना, तुम अब निजात पाने वाले हो, आज़ाद होने वाले हो, यहाँ से निकलने वाले हो। क्या करना? वो बरा जो ज़बह किया है, किस तरह उसे खाना? लिखा है कि तुम जूतियाँ पहनकर और लाठी हाथ में लिए हुए और कमर बांध कर क्या करना? जल्दी जल्दी खाना। यहाँ जूतियों का जिक्र है, लाठी का भी जिक्र है, कमरबंद का भी जिक्र है। जूतियां पहन के दौड़ लगाना, जूतियां पहन के आजाद होना, कहीं जूती भूल ना जाना कि घर में रह गई है। इसकी जो जूती की अलामत है बाइबल मुकद्दस में, इसके बहुत ही पहलू हैं, रूहानी मानों में इस्तेमाल की गई है। इसलिए मैंने कहा कि दुल्हन के लिए जो वेडिंग शूज है वो भी बड़ी क्या रखते हैं, बड़ी अहमियत है उसकी भी। जब दुल्हन, ये दुल्हन ही को पता है कि किस तरह है, कौन सी वो वेडिंग शूज जो है, हील वाली, चमकदार, खूबसूरत पसंद करती हैं। कोई आम जूती तो नहीं ना होती, नो 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 नो, खास किस्म की वो जूती है और बड़ा बड़ा टाइम लगता है ढूंढने के लिए। तो यहाँ भी निजात के काम के लिए कहा, कमर भी कस लेना और क्या करना, और जूती भी पहन लेना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हुआ किसी को कि रफ चपली पाई हो, खुसूसी जूती कहा है, जिक्र है, तो कभी कभी जल्दी जल्दी में क्या करते हैं रफ चपली बाहर निकल, वो शूज नहीं पहनते, वो जूती जो बाहर निकलने के लिए पहननी ज़रूरी है और चाहिए। फिर इसके बाद हम नए अहदनामा में आ जाते हैं और बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 15वां बाब, उसकी 20वीं आयत से 22वीं आयत तक पढ़ें तो यहाँ पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो मुशर्रफ बेटे की बड़ी मशहूर
मशहूर क्या है, कहानी है। तो जब मुशर्रफ बेटा आता है, ये जो हवाला मैंने कहा कि आप लिख लें, हम पढ़ते नहीं हैं, और जब मुशर्रफ बेटा आता है तो अमूमी तौर पर हमने सब ने ज़्यादा मनाती है पोशाक पर, ओके, और अंगूठी पर, ओके। लेकिन एक तीसरी चीज़ भी लिखी है, पढ़ लें यहाँ पर। जब मुशर्रफ बेटा वापस आता है, या इस पर हमने गौर काम किया है, तो यहाँ पर लिखा है कि बाप ऑर्डर करता है मुलाजमों को कि जाओ, इन्हें अब अच्छी पोशाक भी और इन्हें एक रिंग भी, जिसके बारे में हमने गौर, और फिर एक और चीज, 3 चीजें लिखी हैं। तीसरी चीज क्या लिखा है, जूती भी पहनाओ। ये खास अहमियत बाइबल मुकद्दस में इसकी अलामात हैं, इसके रूहानी पहलू हैं, इसके बड़े माने हैं और बड़े गहरे माने भी हैं, ताकि हम समझें। और ये जो अलामती तौर पर है, अब समझ गए हैं कि इसकी कैसी अहमियत दी गई पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में, और जिक्र किया गया है कि जहाँ पोशाक है, अंगूठी है, वहाँ जूती भी इसको क्या करें, पहनाएं। तो हम चंद जो अलामती तौर पर इसके माने हैं आज गौर करेंगे, फिर इससे कंटिन्यू रखेंगे ताकि हम डिटेल के साथ सीख सकें। पहली बात ये अलामत है बाइबल मुकद्दस में, जब खुदावंद ने मूसा को जब जाहिर होता है झाड़ी में, ये बड़ी मशहूर कहानी है, खरूज की किताब में 3 बाब 15वीं आयत में लिखा है कि मूसा अपनी भेड़ें चराते हुए एक साइड पे आया, पहाड़, खुदा के पहाड़ के नज़दीक, और उसने एक झाड़ी को देखा, आग लगी हुई है, लेकिन आग भी लगी है लेकिन झाड़ी जल नहीं जाती। ये फिर किसी वक्त हम सीख सकते हैं क्यों नहीं जली, झाड़ी नहीं जली, आग भी लगी, ओके। लेकिन जब मूसा नज़ारा देखने के लिए आगे जाता है तो खुदावंद की आवाज़ आती है, क्या है मूसा क्या कर, अपनी जूती उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो जगह क्या है। तो ये एक अलामत है। अलामत क्या है, जूती से हम क्या सीखते हैं, रूहानी एक पहलू वो ये कि जब हम खुदा के पास आ जाते हैं, जब हम उसकी हजूरी में आ जाते हैं, जब हम उसे नजात दहिंदा मानते हैं, तो तमाम दुनिया की जो बातें और गुनाह हैं उनको छोड़ करके खुदा की बारगाहों में हमें आना है, क्योंकि उसने कहा अपनी जूती को क्या कर दे, उतार दे, क्योंकि ये जगह पाक है। और इससे हम ये सीखते हैं कि जब हम उसके साथ चलते हैं, जब हम उसकी हजूरी में आते हैं, जब हम उसके घर में आते हैं, जब हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं, जब हम उसकी बादशाहत में दाखिल हो जाते हैं इस दुनिया में, तो हमें हर तरह की बुराई को, हर तरह के बुरे कामों को, हर तरह की बुरी चीज को छोड़ के उसके पास आना है, क्योंकि वो कद्दूस है, क्योंकि वो पाक है, क्योंकि वो मुकद्दस है। इसलिए जब फिर हम उसकी हजूरी में आते हैं तो सारियां सब की सब बुराइयां छोड़ के उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। तो इससे हम ये सीखते हैं कि जब हम जिक्र करते हैं जूती का, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुदा की हजूरी में सच्चाई से, पाकीज़गी से, खालिस दिल से, खालिस नीयत से खुदावंद के साथ चलें और उसके पास आएं। फिर खुदावंद और ज़्यादा अपने लोगों को बरकतों से माला माल कर देता है। हालेलुया। वरना ये जो जूती है ये सिर्फ
फिजिकली बात नहीं है कि जब खुदा की हज़ूरी में आ जाइए, फिजिकली भी एक ऑनर है, एक कल्चर है, तमाम मज़ाहब में एक कल्चर है कि जब वो ख़ास मुक़द्दस जगह पर आते हैं तो अपनी जूती उतार देते हैं। लेकिन ये तो एक सिखाने की बात है, अंदर की बात नहीं, बात है रूहानी बात नहीं, बात है कि हम सारी बुराइयों को छोड़ कर के आए। वरना नहीं तो फिर जूती फिजिकली जो है सही जूती वो उतार भी दें और अंदर से बुराइयां ना जाएं तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये खुदा ने सिखाने के लिए कहा। जिस तरह खुदा में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव को क्या किया, धो दिया, सिखाया कि आपको पाँव धोने की क्या है, ज़रूरत है। तो खुदावंद सिखाता है, हमें समझाता है ताकि हम आसानी के साथ समझें कि इसके मानी क्या है, इसका रूहानी मतलब क्या है। तो जूती उतार के, और देखो अब पूरी दुनिया में जाएं, कई जगह पर मुकद्दस जगहों पर जूती नहीं उतारते। कई चर्चेज में, कैथेड्रल में ये डिपेंड करता है, अगर संगे मार लगा है तो सारे वो शूज़ पहन के आते हैं। अगर देखा कलीन बिछा हुआ है तो कहते हैं जूती उतार के चले गए। कई मुल्क ऐसे हैं जो अपने घरों में जूती पहन के नहीं जाते। ये नॉर्वे मैं जाता रहता हूँ, वहाँ कल्चर है कि वहाँ जूती बाहर उतार के आते हैं। हमारे कल्चर क्या है कि हम अंदर ले, ये एक कल्चर की बात है, ये फिजिकली इसका कोई माने नहीं है। जूती में जाएं, जूती के साथ जाएं, लेकिन आपका दिल, आपका रूह, आपके ख्यालात और आपके काम जो है पाक होने चाहिए और खुदा कबूल करता है उसकी हजूरी में। और फिर दूसरी बात हम एक और सीखते हैं, ये निकालें हवाला मेरे साथ, ये थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। रूत की किताब मेरे साथ खोलें बाइबल मुकद्दस में से और निकालें उसका 4 बाब, रूत की किताब। और इस कहानी से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। रूत की किताब 4 बाब 7वीं आयत से 8वीं आयत तक हम पढ़ेंगे और फिर मैं बताऊंगा कि यहाँ इसके क्या मानी हैं। बाइबल मुकद्दस में 7वीं आयत से हम पढ़ते हैं, लिखा है, और अगले ज़माना में इस्राएल में मामला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में ये मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को दे देता था। इस्राएल में तस्दीक करने का यही तरीका था। सो उस नज़दीक के कराबती ने बोयज से कहा कि तू आप ही उसे मोल ले ले। फिर उसने अपनी जूती उतार डाली और बोयज ने बुजुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो कि मैंने अलीमलेक और किलियोन और महलून का सब कुछ नौमी के हाथ से मोल ले लिया है। आप इससे वाकिफ़ हैं, इस स्टोरी से। रूत एक एग्जाम्पल है, जब उसका शौहर मर जाता है, नौमी उसकी सास है, तो वो बड़ी ज़िद करके अपनी सास के ही साथ रहती है। तो वहाँ दस्तूर क्या था कि जो उसका देवर है वो उसकी जो जायदाद है वो क्या करे, मोल ले उसके लिए, और फिर उसके साथ क्या करे, शादी। हमारा जो मौजू है दूल्हा दुल्हन की शादी का है, तो वो उससे शादी करे और
वहाँ क्या बात हुई है कि बुजुर्गों के सामने जो वो जगह थी, बुजुर्ग इकट्ठे हो जाते थे और सब लोग इकट्ठे हो जाते थे और उससे मोल लेने का और शादी करने का, ये देखे एक अलामत थी जूती। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इससे बहुत सारे पहलू हैं, माने हैं कि वो क्या करते थे उस वक्त कि अपनी जूती को क्या करते थे, उतार देते थे और उतार के फिर क्या होता था, तस्दीक इस्राएल में हो जाती थी कि इसने जूती उतारने के बाद उसको, जिस शख्स को वो खरीदना चाहता था, मोल ले लेता था और उसके साथ क्या करता था, शादी करता था। तो ये अलामत बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, ये अलामत जूती उतारने की, ये रस्म जूती उतारने की जो अलामत है, जूती की ये जो अलामत है, ये शो करती थी कि इसका मतलब ये है किसी का, इंग्लिश में लिखा है रिडीमर, रिडेम्पशन। जो बाइबल मुकद्दस में हम कहते हैं नजात, हम कहते हैं रिडेम्पशन, छुड़ाने वाला। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें भी अपना पाक और मुबारक लहू बहा के हमारा फिदिया दिया और हमें मोल ले लिया है और हमें छुड़ा लिया है और हमसे रूहानी तौर पर शादी कर ली। हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस में पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, जहाँ के वो हमारी खलासी फ़ानी चीज़ों से नहीं हुई, उसने फिर सब के लिए हमारा फिदिया दिया है। फिदिया देने का यही मतलब था कि छुड़ाना और मोल खरीद लेना और फिर उससे शादी कर लेना। सो कलीसिया बड़ी मुबारक है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना पाक मुबारक बेशकीमत लहू बहा के हमको खरीद लिया। हालेलुया। और हमें मोल ले लिया और हमारा फिदिया दे दिया। हमारी जगह पर उसने हमारी कीमत को अदा कर दिया और ना सिर्फ हमें छुड़ाया बल्कि हमें अपना बना लिया, हाल अपनी दुल्हन बना लिया। हालेलुया। सो इसलिए खुदा का हमें क्या करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए अपने छुड़ाने वाले का, अपने फिदिया देने वाले का, अपने नजात दहिंदा का कि यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया, आज़ाद कर लिया। फिर एक इसकी और अलामत है। एक अलामत ये हुई कि छुड़ाने वाला है और फिदिया देने वाला है हमारा यीशु मसीह। एक और इसकी अलामत है बाइबल मुकद्दस में, जो भी मैंने पढ़ा भी है, 4 बाब और 7वीं आयत। यहाँ बाइबल मुकद्दस में फिर पढ़े तो इसके माने ये हैं कि वो मलकियत जो होती थी, वो जूती जब उतारते थे पड़ोसी के घर में, तो वो जो मलकियत होती थी, पोजेशन इंग्लिश में लिखा है, कि वो इसी तरीके से, सिर्फ जूती उतार के भेजने के तरीके से वो मलकियत जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती थी, शिफ्ट हो जाती थी कि ये मलकियत जो है शिफ्ट हो गई है। हालेलुया। और खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ हमें दुल्हन बनाया, ना सिर्फ उसने हमें मोल लिया, बल्कि उसने जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र कर दी है और शिफ्ट कर दी है। और बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र है। रोमियो का खत पढ़ लें, उसका 8वां बाब पढ़ लें,
اس کی 17ਵੀं آیت پڑھ لیں. یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ رومیو 8:17 میں کیا لکھا ہے؟ اگر ہم فرزند ہیں، یہ بڑی مشہور ہے، اگر ہم فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں. اور کس کے وارث؟ خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث ہم بن گئے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نہ صرف مول لیا، نہ صرف خریدا، نہ صرف ہمیں دلہن بنایا، بلکہ اس نے ہمیں ہم میراث ٹھہرا دیا. جو اس کی اپنی پراپرٹی تھی وہ ہمارے نام ٹرانسفر کر دی. وہ بھی مالک، ہم بھی مالک. کبھی غور کیا مسیح کے ہم کیا ہیں؟ ہم میراث ہیں. ہم برابر کے کیا ہے؟ حصے دار ہیں. ابھی کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا رجسٹری والا کہ ہم 2-3 بھائی ہیں تو رجسٹری کیسی ہونی چاہیے. میں نے کہا اگر 2-3 بھائی ہیں ایک ہی رجسٹری کرنی ہے تو اس پہ لکھا جائے گا کہ یہ تینوں کا برابر کا حصہ ہے. رجسٹری ایک ہی ہوگی، حصہ برابر ہوگا. تو خداوند یسوع مسیح نے کیسا ہم پر فضل کیا، کیسا دلہن پر فضل کیا، کیسا جب اس نے دلہن بنایا تو اس کی پراپرٹی میں ہمیں اس نے شامل کر دیا اور اپنی پراپرٹی شفٹ کر دی دلہن کے نام. وہ بھی مالک، ہم بھی مالک. اور پورے یورپ میں، امریکہ میں، یہاں بھی شاید ہوگا کہ جو دلہا مالک ہے، جن چیزوں کا اس میں 50 ملکیت دلہن کی ہوتی ہے. اگر دلہن امیر ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تو آج بھی قانون ہے، آج بھی اگر دلہن امیر ہے تو اس کی پراپرٹی میں دلہا برابر کا شریک ہے. یہ قانون لاگو ہے اور جاری ہے. تو روحانی طور پر بھی جب یسوع نے اپنے خون سے خریدا، ہاللویا، ہم اس کی پراپرٹی میں، ملکیت میں، برکتوں میں حصے دار ہیں. گلوری ٹو لارڈ. کیسی پیاری اس کی دلہن ہے. اگر انسان ایسا کر سکتے ہیں تو وہ تو پھر خدا ہے. اور آپ اپنے آپ کو سمجھیں جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے، باپ جو کچھ تیرا ہے وہ، تو دلہن کیا کہے؟ دلہن کیا کہے؟ اپنے دلہا کو کیا کہے؟ کہ جو کچھ تیرا ہے اور جو میرا ہے وہ تیرا ہے. لیکن دلہا کہندی نہیں جی، ساڈا کتھے ہوئے، سب کچھ تے تاڈے کول ہی، سارے اختیارات تے تاڈے کول نہیں. آسمان عالم روح دیاں کنجیاں تے دلہا جی تاڈے کول نہیں. وہ کہندا ٹھیک ہے، میں تانوں بھی دتیاں کنجیاں، میں نے اختیارات تمہیں بھی دیے ہیں. اور صرف یقین کر لو، صرف ایمان رکھ لو کہ جو کچھ میرا ہے وہ، یقین تو رکھو آپ کا ہی. بے شک میں وقت پر دوں گا، بے شک میں ضرورت کے مطابق دوں گا، بے شک میں کبھی آپ کو بھوکا نہیں رہنے دوں گا، بے شک میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دوں گا. لیکن ایمان تو رکھو کہ جو ہمارے دلہا کا ہے وہ سب کچھ ہمارا ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ نا جی نا. کئی دلہن کہندی ہیں تے کچھ نہیں ویکھیا، کتھے لیا وہاں. تلی دے رکھ، ساڈے کول تے ادو آنا جدوں تلی دے رکھو. اگر تلی تے نہیں آیا پاویں جتھے مرضی رکھو، سانوں کی لگے. لیکن مسیح کی دلہن، ہاللویا، وہ ایماندار دلہن ہے. وہ اپنے دلہا پر یقین کرتی ہے، کیونکہ ہمارا جو دلہا ہے وہ انصاف والا دلہا ہے. ہاللویا.
वो अपनी बात कह के मुकर नहीं जाता, वो प्रॉपर्टी लिख के मुकर नहीं जाता है, जो उसने वादे किए हैं मुकर नहीं जाता है, वो अपने वादों पर कायम है। हालेलुया। उसने जो वादे हजारों किए उसकी दुल्हन ही के लिए हैं। सिर्फ आप यकीन करें, ईमान लाएं, एंजॉय करें और उसी तरह चलें फिरें कि जो हमारे दुल्हा का है वो ही हमारा है। हालेलुया। हमारा दुल्हा जो है आसमानों और ज़मीन का जो कुछ इसमें है उसका मालिक है। हालेलुया। तमाम बरकतों का मालिक है और हम उसके हिस्सेदार हैं। फिर दिल से शुक्रगुजारी निकलेगी कि नहीं? या फिर भी कहेंगे दूल्हे ने सानू की दिता? कुछ नहीं दिता दूल्हे ने। खुदावंद ने, यीशु मसीह ने हमें हर चीज मुहैया कर दी है। हालेलुया। कलाम पाक में लिखा है जब खुदा ने अपना बेटा ही देने से, तो बाकी ये दुनिया की चीजें क्या है, ये चूंगा क्या है, कुछ भी नहीं। सिर्फ यकीन रखें, ईमान रखें, क्योंकि जब हम ईमान रखते हैं तो आसमान खुल जाता है। जब ईमान रखते हैं तो लिखा ईमान से पहाड़ को भी कह दो कि सरक जा, तो क्या होगा? सरक जाएगा कि नहीं? फिर क्या लिखा है? जो दुआ ईमान के साथ होगी बरकत मिलेगी, सुनी जाएगी। यकीन, ईमान। फिर यहाँ तक भी लिखा है कि जो कुछ मांगो समझो कि तुमको को मिल गया। नजर नहीं आया लेकिन मिल गया। ये दुआ मैंने मांगी है, तेरा शुक्र, मिल गई। ये बरकत मैंने मांगी है, तेरा शुक्र, मिल गई। ये मैंने कहा बरकत मुझे दे, मौजा कर, तेरा शुक्र, मौजा हो गया है। तो फिर हो जाएगा। इसलिए ये कलीसिया को, मसीह की दुल्हन को अपने दूल्हा पर फख्र करना चाहिए, यकीन करना चाहिए, ईमान रखना चाहिए कि हालेलुया हम अपने दुल्हा की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं और खुदा ने हमें बनाया। और वारिस किसके हैं? छोटी चीज के किसके वारिस हैं? खुदा के वारिस, मसीह के हम मिरास। हालेलुया। तो कलीसिया को खुश होना चाहिए, कलीसिया को शुक्रगुजार होना चाहिए, कलीसिया के चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, या कलीसिया फिर भी यही मैं या मुंह बना के लगी फिरे। दूल्हा ने की है कुछ ना पूछो। दूल्हा ने वादे कीते सा, कोई चीज नहीं नजर आई। दुल्हन की है बस चुप कर दो, जेड़े वादे सा बस छड़ दियो। चलो इंसान तो ऐसा कर ही सकता है, उसकी बसात में शायद ना हो, है ना, लेकिन हमारा दूल्हा उसकी बसात में है, वो कुदरत वाला है, कादर मुतलक है, सारे खजानों का क्या है। उसके लिए कोई मुश्किल है? आपको बड़ी सी बड़ी, छोटी सी छोटी चीज देने के लिए कोई मुश्किल है? नो, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए कलीसिया दुल्हन अपने दुल्हा पर यकीन करे, उसकी शुक्रगुजारी करे, प्रशंसा करे, उसकी हम्द करे। एक और चीज और हम गौर करते हैं, फिर इसे कंटिन्यू आगे रखेंगे ताकि और ज़्यादा हम बरकत की बात सीखें। वो ये है, लिख लें, लिखने वाले लिख लें कि जो शूज़ है या जूती है हमारी ज़ुबान में, इसके एक माने है पावर। जूती किसकी अलामत है? शूज़ किसकी अलामत है? पावर। आपने सुना होगा आर्मी बूट,
वो जब आर्मी, ये बड़ा मशहूर भी है, मुहावरा भी है, इतना कहना ही बड़ा है, बूट। जब किसी ने बूट कह दिया, इसका मतलब क्या है? पावर, है ना। जब किसी ने बूट कह दिया, इसका मतलब है ताकत, इसका मतलब क्या? लश्कर, इसका मतलब क्या? आर्मी। तो खुदा ने, हमारे दूल्हा ने जो हमें शूज या जूती दी है, इसलिए दी है कि आपके पास पावर हो। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग जूती दी बल्कि औरतों का तो एक हथियार भी है जूती। खुदा की पावर है और औरतों का क्या क्या? हमेशा ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ, ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੁੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਰਾ ਹੀਲ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਕੀਆ, ठोक देने हील वाली जूती, धड़ाल धड़ाल धड़ाल। खुदा की पावर भी है और दुल्हन की एक, दुल्हन का क्या है? हथियार है, बिल्कुल। बल्कि बच्चियां भी चंगी तरह कोट देंगे, या बच्चा दौड़ जाए पीछे मार दे, हाँ जितने मर्जी आ जाए, है ना हथियार? क्यों जी? सही है। और पावर भी है, रूहानी पावर है, ये एक अलामत है, रूहानी पावर है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है सांपों और बिच्छुओं को, हाँ, तो किस तरह कुचला जाएगा? अगर शूज स्ट्रांग है, जूते स्ट्रांग है, तो आप जनाब ओए बिच्छुओं को, सांपों को क्या करोगे? अगर पाँव में जूती नहीं तो फिर क्या करेंगे? हाँ, काट लेगा। तो खुदा ने मिस्र से निकलते कहा कमर भी बंधी हो, और क्या था? हाँ, कमर भी बांधी हो, और लाठी भी, और हाँ लाठी भी ना रखना। कोई कुत्ता है तो उन्हें लाठी मारो, कोई थले कीड़ा जरीला है तो जुत्ती नाल कुचल दो जंगल में। तो कलीसिया मसीह की दुल्हन, आप खुश हो? खुदावन यसु ने, दूल्हा ने आपको एक पावर दी है, इब्लीस की सारी कुवत पर गालिब आओ। उसने जो शूज पावर वाले दिए उससे सारे कीड़े मकोड़े हैं, उससे सारे सांप और बिच्छुओं को क्या कर दो? कुचल दो। और फिर ये इतनी पावर है इसमें अलामत है पावर की। कोई जो जूती पहनता है, उससे जो रास्ते किस तरह के भी खराब हों, हैं, उसकी हिफाजत होती है कि नहीं? हैं, उसकी हिफाजत होती है। अगर जंगलों में जाएं, पहाड़ी इलाकों में जाएं, वहाँ पत्थरों पे आप चलें, जिस तरह की मर्जी ज़मीन पर चलें, हैं, तो अगर आपने जूती पहनी हुई है, शूज़ पहने हुए हैं, तो आपके पाँव को भी क्या करेगी? बचाएगी कि नहीं? हिफाजत करेगी कि नहीं? कोई नीचे चीज़ आ गई है, उससे बचाव होगा कि नहीं? लेकिन अगर आप नंगे पाँव चलो, दुल्हन कहे नहीं नहीं नहीं, मुझे दूल्हा से शूज़ नहीं चाहिए, नो 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 नो। हम क्या कहते हैं बच्चों को? पुत्र नंगे पाँव नहीं चलना है, जुत्ती पा के निकलो है, बाहर बड़े कीड़े मकोड़े जो होर नहीं तो तुहानू है जी डेंगी ने वड़ जाना है। जुत्ती भी पाओ, बिच जराबां भी पाओ। हिफाजत होती है कि नहीं? दूल्हा ने जो हमें शूज दिए हैं, कुवत दी है, इसका मतलब ये लामती तौर पर पावर दी है। और
हिफाजत के लिए दिए हैं, और बिच्छुओं और सांपों को कुचलने के लिए हमें पावर दी है। तो हम क्या करें? उसकी बख्शिशों को, उसकी पावर को, उसकी ताकत को, उसकी नेमतों को, उसकी बख्शिशों को, उसके तहाइफ को क्या करें? इस्तेमाल करें। ये ना कहें कोई बात नहीं, मैं नंगे पाँव चल सकना, मैंने जूती दी कोई ज़रूरत नहीं। ना 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 ना, उसका शुक्रिया अदा के करें। खुदावन तेरा शुक्र हो, तूने मुझे पोशाक भी दी नजात की, खुदावन तेरा शुक्र हो। तूने मुझे रिंग भी, वेडिंग रिंग भी दिया, तमाम बरकत दी, अलामती तौर पर हमने सीखा, और खुदावन तेरा शुक्र हो। तूने हमें एक पावर वाली और अलामती तौर पर बहुत ही बरकतों वाली एक अंगूठ, एक जूती और शूज़ भी अता किया है। वेडिंग शूज़, वेडिंग जूती, इसके लिए भी ए दुल्हा हम तेरा क्या करते हैं? शुक्रिया अदा करते हैं, और इस जूती को पहन के चलें हैं, इस जूती के लिए शुक्रगुजारी करें, और इस जूती से शैतान को भगाएं और कुचलें, ठीक है? और शैतान के चेलों को भी इसमें से कुचल दें, क्योंकि खुदा ने आपको बहुत पावर दी है। अभी और चीज़ें हैं, अलामती तौर पर हम सीखेंगे। आइंदा संडे की इबादत में मिस न करें। खुदा आपको बरकत दे। मेरे पीछे छोटी सी दुआ करें। है आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो तेरी तमाम नेमतों और बरकतों के लिए। ऐ हमारे दुल्हा खुदावंद यीशु मसीह, तेरा शुक्र हो, तूने हमें मोल लिया, तूने हमारा फिदिया दिया, तूने हमें ख़रीदा, और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आए हमारे खुदावंद यीशु मसीह, आए हमारे दूल्हा, तूने जब हमें कबूल किया तो तूने अपनी प्रॉपर्टी का हमें हिस्सेदार ठहरा दिया। हम खुदा के वारिस और तेरे हम मिरास बन गए हैं, और इकरार करते हैं और ईमान लाते हैं जो कुछ तेरा है वो हमारा है। और बख्श दे जो तूने पावर दी है, कुव्वत दी है, नेमतें दी हैं और इख्तियार दिया है, उन्हें इस्तेमाल करें और बिच्छुओं को और सांपों को कुचलें, और तेरा जलाल ज़ाहिर हो कि हम जाने कि हम तेरी दुल्हन है, लोग जाने कि हम तेरी दुल्हन है, और हम शादमान रहें और यकीन करें और ईमान लाएं और तुझ में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में अपने दूल्हा के लिए जोरदार तालियां बजाएं। गॉड ब्लेस यू।